Hello guys, welcome to all of you on my YouTube channel Terraces Vision. In the previous class, we discussed that how a girl who has fashioned herself with lots of synthetic is complaining to her lover. And when her lover doesn't respond, she again screams at him. She tells him that if he doesn't respond, he will go out as she is. And this, action will make the people shameful, and the society will criticize that man instead of that woman. In today's lecture, we are going to deal with the part of the wasteland where the scene has shifted from an elite and rich woman to a married life to a poor woman. Here in this scene, we are going to see that there is a conversation between two women, and there is one woman who is giving some advice to another whose husband had just been released from the army. And now, due to it, she is worried that how would she will physically satisfy her husband. And here we see that the more worried person in this scene is not the wife, but the another woman who is advising her. Here, T.S. Eliot seems to have criticized, the pseudo face of feminism, where a woman can't, bear the face of another woman when it comes to, physical relationship or any other issues. यहां पर इस सेक्शन में हम देखते हैं, इस सीन में हम देखते हैं कि टीएस एलियट ने यह दिखाया हुआ है कि दो महिलाएं आपस में बात कर रही हैं और एक महिला दूसरी महिला जिसका नाम क्या है, लिल को एडवाइस कर रही है। लिल को यह एडवाइस दी जा रही है कि अगर वो चाहती है कि उसका पति जो है क्या हो, उससे खुश रहे, उससे सेटिस्फाई रहे, तो उसे अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाना पड़ेगा। और यहां पर आप देखेंगे कि आपको यह महसूस होगा कि क्या हो रहा है कि इंसानी जज्बातों से ज्यादा, इंसानी इमोशनल रिलेशनशिप से ज्यादा कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो एक फिजिकल अट्रैक्शन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिल का हस्बैंड है और वो सेना से अभी उसको रिलीज किया गया है, और अब क्योंकि वो घर पर आ रहा है, 4-5 साल बाद वापस वो आ रहा है, तो वो चाहता है कि वो क्वालिटी टाइम को स्पेंड करे, और ये बातें उसको बता रही है वो दूसरी महिला। इन दोनों की कन्वर्सेशन को बार बार एक बारमेड आकर के इंटरप्ट करती है कि मैडम हो गया, बस एनफ, टाइम अप, ये टाइम हो गया है कि हम इस बार को बंद करें, इसलिए अपनी कन्वर्सेशन को अब आप खत्म करिए। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि ये कन्वर्सेशन एंड होने का नाम नहीं ले रही जब तक वो 3-4 बार इस बात को ना कह सके। दिस इज द कंडीशन ऑफ अ पुअर वुमन, राइट? बिफोर इट वी वर डीलिंग द फिजिकल लाइफ या और द लाइफ ऑफ एन एलीट वुमन who has decorated herself and was waiting for her lover. But here in this scene we are seeing that there is a woman who was pregnant 5 times, and sometimes to abort her pregnancy she took many pills, and due to those pills her physical attraction, or we can say the strength of her body has now destroyed. But it doesn't put much effect on the people. It doesn't put much effect even to her husband. Her husband just needs the physical satisfaction. He does not accept it that the weakness of his wife is due to him, because he, in the form of sexual relationship has tortured her. He has tortured, her attraction. He had tortured her body to physically satisfy himself. And here, that's why T.S. Eliot
depicts the married life of a poor woman. This is the married life of a poor woman. So let's see what T.S. Eliot in the form of Tiresias describes. When Lil's husband, यहां पर क्या है, लिल हस्बैंड, आपको याद रखना है कि एक कैरेक्टर का नाम दिखाया गया, इसका नाम क्या है, लिल, और ये क्या है, पुअर वुमन, एक गरीब महिला है, अ पुअर वुमन जिसका हस्बैंड सेना में था, गॉट डिमॉब्ड, डिमॉब्ड मींस रिलीज्ड, व्हेन लिल्स हस्बैंड गॉट डिमॉब्ड, जब लिल का हस्बैंड क्या हुआ, वो डिमॉब्ड हो गया, रिलीज हो गया, सेना से उसे रिलीज कर दिया गया. आई सेड, हु इज आई हियर, आई इज द वुमन, वो औरत है जिसका नाम यहां पर नहीं दिया गया है, बट इट इज द वुमन हु इज एडवाइसिंग लिल, हु इज एडवाइसिंग लिल, जो क्या कर रही है, लिल को सलाह दे रही है कि उसे कैसे रहना है. When Lil's husband got demobbed, जब लिल का हस्बैंड क्या हुआ, उसे रिलीज किया गया सेना से. I said, मैंने कहा, I didn't mince my words. What does it mean? I am not telling a lie. I am not telling a lie. मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, मैं किसी शब्द को छिपा नहीं रही हूं. I said to her myself. Her means कौन है यहां पे, लिल. I said to her myself. मैंने लिल से स्वयं कहा, मैंने उसको बताया कि तुम कैसे रहोगी. अब तुम्हारा हस्बैंड रिटायर होकर के आ जा रहा है और तुम्हें पता है कि उसकी नीड्स क्या क्या हैं. तुम्हें नहीं पता होगा, मुझे पता होगा इस चीज को, समझे. तुम जितना अपने पति को नहीं जानती हो, उससे ज्यादा मैं जानती हूं. मींस सी द रिलेशनशिप, सी द बॉन्डिंग ऑफ लिल एंड हर हस्बैंड. शी डज नॉट नो हर हस्बैंड, बट द वुमन हु इज एडवाइजिंग हर knows more than her about her husband. So here, hurry up please, it is time. ये किसका स्टेटमेंट है, उस बारमेड का. बारमेड जो आकर के इनको बार बार इंटरप्ट कर रही है, बारमेड है तो बार बार इंटरप्ट करेगी ही. बारमेड करी, हरी अप प्लीज, इट इज टाइम, बस करिए मैडम जी, समय हो गया है. लेकिन कैसे, इन द रूम द वीमेन कम एंड गो टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो. समझे, एक बार प्रोफेसर लाल शर्मा सर पढ़ा रहे थे और उन्होंने कहा, मैंने दुनिया का एक बहुत, ठीक है, अपने आप में बड़ा अजूबा देखा. The students, became surprised at what actually it be. वो एकदम से सोच पड़ गए क्या हो सकता है. उन्होंने कहा, दो लड़कियां चुपचाप बैठ करके पढ़ रही थी. तो आप समझ सकते हैं ना, ये एक इम्पॉसिबल टास्क हो सकता है, बातें खत्म ही नहीं होती हैं. अच्छा है, होना भी चाहिए, राइट. मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं कि बातें करने की वजह से मैं उनको कहूं कि ये वैसे हैं, कुछ मैं भी करता हूं इतनी बातें. चलिए, नाउ अल्बर्ट्स कमिंग बैक, अब बता रही हूं उस लिल को कि अब तो अल्बर्ट वापस आ रहा है. मेक योरसेल्फ अ बिट स्मार्ट, अरे थोड़ा सा स्मार्ट हो जाओ, राइट. अब वो स्मार्टनेस कहां से लाएगी लिल बेचारी. लिल तो एकदम से वो लुल हो चुकी है, उसकी ये स्थिति हो चुकी है कि नाउ अल्बर्ट्स कमिंग बैक, मेक योरसेल्फ अ बिट स्मार्ट, अपने आप को थोड़ा सा स्मार्ट बना लो. अरे स्मार्ट कैसे होगी, वो 5 बार सो प्रेग्नेंट रही है और उसे पिल्स दिया गया, केमिस्ट ने कहा सब कुछ सही हो जाएगा, तुम सही हो जाओगे, लेकिन कुछ सही नहीं हुआ. उसकी जो बॉडी एकदम से खराब हो चुकी है, वो क्या हुई, कभी दोबारा अच्छी हुई ही नहीं. देखिए क्या है पूरा, नाउ अल्बर्ट इज कमिंग बैक, अब अल्बर्ट वापस आ रहा है. मेक योरसेल्फ अ बिट स्मार्ट, ही विल वांट टू नो, वो जानना चाहेगा. ही विल वांट टू नो, अल्बर्ट, ही कौन है यहां पे, अल्बर्ट वांट टू नो व्हाट यू डन, कि तुमने क्या किया, with that money, उस पैसे से he gave you, means Albert has given Lil some money and this is known to that woman. ये बात वो महिला जानती कि हाँ उन्होंने उनको कुछ पैसे दिए हुए हैं. भाई गजब की बात है कि महिला अपनी वाइफ को पैसे दिए हैं, इनको पता है. to get yourself some teeth, दांत लगवाने के लिए पैसा दिया तुमको, समझे. दांत वहां सब गिर गए हैं बेचारी लिल के, उसकी हालत ऐसी हो गई है. He gave you to get yourself some teeth, कि तुम क्या करो उसका, तुम कुछ दांत लगवा सको. He did, he gave you the money. He did means he gave you the money. Now she is emphasizing on it कि he gave you the money, उसने दिया तुमको पैसा. I was there, मैं थी वहां पे. I am witness of it. How Albert loves you, कितना तुमको प्यार करता है वो. उसने पैसे दिए तुमको, कहा तुम एक, ठीक है, नए दांत लगवा लेना. अरे तुम खुद क्यों नहीं लगवा दिए ले जाकर के उसका,
when you know जब आपको चाहिए कि आपकी बीबी अच्छी दिखे, तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ना, तो तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी है। नहीं, पैसे देना महज एक जिम्मेदारी है बस, कह रहे हैं, और वो भी इनके सामने। he did, he gave you the money, I was there, I am witness of it, मैं वहां पे थी। you have them all, तुमने ले तो लिए सारे, all means सब, तुमने ले तो लिए, you have them all out, out mean spent, right, तुमने सारे पैसे ले तो लिए, लिल एंड गेट अ नाइस सेट, राइट, गेट अ नाइस सेट, ताकि तुम क्या करो, तुम एक नाइस सेट ऑफ टीथ, नाइस सेट ऑफ टीथ तुम ले सको। लेकिन मामला क्या है, ही सेड, ठीक है, उसने कहा, उसने क्या कहा, आई स्वेयर, मैं कसम खाती हूं। ये किसकी लाइनें हैं, ये अल्बर्ट कह रहा है अपनी पत्नी को, और ये याद दिला रही हैं उस बात को, कह रही हैं ही सेड, उसने कहा, क्या कहा, आई स्वेयर, मुझे याद है, एकदम से याद है मुझे, आई स्वेयर, मैं कसम खाती हूं, आई कांट बियर टू लुक एट यू, मैं ना तुम्हारे सामने तुमको देखने की हिम्मत नहीं कर सकता, आई कांट बियर टू लुक एट यू, सी योर फेस, दैट हाउ यू नो योर फेस हैज लॉस्ट दैट चार्म, यानी कि तुम्हारे फेस से वो चार्म अब गया है, जा चुका है, तो मैं तुम्हारे ऊपर देखने की, तुमको देखने की मैं हिम्मत नहीं कर रहा हूं। ऐसा अल्बर्ट साहब का कहना है अपनी पत्नी को लेकर के, कि मैं क्या है देख रहा हूं, आई कांट बियर टू लुक एट यू, आई कांट बियर टू लुक एट योर फेस, एंड नो मोर कांट आई, और ये जो उनको एडवाइस दे रही हैं सेकंड वुमन, ये कह रही हैं, एंड नो मोर कांट आई, और मैं भी नहीं दे सकती, and no more can't I, he can't bear to see at you, look at you, and neither can I, और ना तो मैं तुम्हारे चेहरे की तरफ देख सकती हूं। I said, मैंने कहा, and think of poor Albert, बेचारा अल्बर्ट हमारा, ये बड़ा परेशान है अल्बर्ट को लेकर के, एंड थिंक ऑफ पुअर अल्बर्ट, और सोचो उस बेचारे अल्बर्ट को लेकर के कि उसकी हालत क्या है। Think of poor Albert, he has been in the army 4 years, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, राइट, एग्जाम में आपके एलटी के, कि अल्बर्ट कितने साल आर्मी में रहा है, तो आर्मी में कितने साल रहा है वो, 4 साल, याद रखिएगा, 4 याद रखिए, he has been in the army 4 years, 4 साल सेना में रहा है, he wants a good time, क्या है उसे, he wants a good time, now he needs a गुड टाइम, और ये गुड टाइम कौन सा है, फिजिकल रिलेशनशिप वाला समय, ठीक है, ये वाला सेक्स का समय, he wants a good time, and if you don't give it him, और अगर तुमने उसे ये नहीं दिया, it means physical satisfaction, right, and if you don't give it him, और अगर तुमने ये चीज उसे नहीं दी, physical satisfaction, there is others will, right, there is others will, तो और भी लोग हैं जिनकी इच्छा है, जो अल्बर्ट को फिजिकली सेटिस्फाई करने की हिम्मत रखते हैं, और मैं भी उसमें से कहीं ना कहीं वो एक हिडन जो है मोटो ये है कि अगर तुम उस चीज को नहीं कर सकती हो, तो मैं उस जगह को ऑक्युपाई कर सकती हूं, there is others will, I said, मैंने कहा, oh is there, she said, अब आप सोचिए कि लिल कितनी बेचारी जो है ना, ये लिल का स्टेटमेंट है, लिल्स स्टेटमेंट ये है, ओ देयर इज अदर्स, ठीक है, कह रही ओ इज देयर, ऐसा भी है क्या, मतलब लिल बेचारी इतनी जो है वो मासूम है कि ऐसा भी हो सकता है कि इफ योर हस्बैंड, यू नो, इफ यू आर नॉट एबल टू फिजिकली सेटिस्फाई योर हस्बैंड, एंड दैट हस्बैंड हु हैज मेड यू प्रेग्नेंट 5 times, and if you know due to your physical weakness you are unable to give him a proper time of what, proper time of sexual relationship, then you know he will attract towards other women, and there are women who don't see that no, Albert is the husband of Lil, no, it doesn't matter, they will establish physical रिलेशनशिप विद अल्बर्ट, वो अल्बर्ट के साथ फिजिकल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर लेंगे, चाहे जो भी हो। देखिए, ओ इज देयर, शी सेड, ऐसा भी है क्या, ऐसे भी लोग होते हैं इस दुनिया में, लिल इज सो इनोसेंट, शी डज नॉट नो दैट दिस एक्चुअली कैन हैपन, बट दिस कैन, लेकिन ये हो सकता है।
कोई फर्क नहीं, ये इंसानी रिश्ते ये महज क्या हो चुके हैं नाउ दे, इनकी जो डोर है ये बहुत ही फ्रेगाइल हो चुकी है, बहुत ही कमजोर, इतनी कमजोर कि जब क्या हुआ, किसी का हस्बैंड मिला, लपक लिया। समझे, ये हैं बातें। दोस्त का लोग दोस्त के साथ में रहते हैं, दोस्त के पार्टनर को, ठीक है, हो गया। उसके बाद चलिए, बहुत बड़े इंडिया में केसेस कई बार ऐसे हुए हैं और आप लोग जानते भी होंगे कई सारे, मैं आपको बताऊं क्या, राइट। शी सेड समथिंग ओ दैट आई सेड, अच्छा कुछ इस तरीके से, समथिंग ओ दैट आई सेड, हाँ कुछ इसी तरीके से बात है, आई सेड मैंने कहा, ठीक है। ऐसा हो सकता है अगर तुमने अल्बर्ट को सपोर्ट नहीं किया, बेचारा अल्बर्ट इतने साल सेना में रहा, 4 साल, और अब आएगा तो उसे समय चाहिए ना, देन आई विल नो, तब मुझे पता है, आई विल लुक फॉर इट, आई विल लुक फॉर इट, तब मैं देखूंगी, हु टू थैंक, थैंक मीन्स हु इज देयर, हु इज देयर, who is ready to do this, who is ready to do this, यानी यहां पे कौन है जो इस काम को करने के लिए तैयार है। she said and give me a straight look, देखो मेरी तरफ सीधे, give me a straight look, मेरी तरफ देखो, hurry up please it is time, मैडम बस करिए, समय हो गया है, उठिए, बंद करने का समय हो गया, दुकान बढ़ाने का समय हो गया है। लेकिन कहां मानने वाली हैं अभी देखिए, इफ यू डोंट लाइक इट, और आगे सलाह दे रही हैं, अब आगे देखिए, इफ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है, यू कैन गेट ऑन विथ इट, और ये इट क्या है, जैसी तुम्हारी हालत है, राइट, जैसी भी तुम्हारी कंडीशन है, अगर तुम इस चीज को पसंद नहीं करती हो, यू कैन गेट ऑन विथ इट, कोई बात नहीं है, समझे, यू कैन गेट ऑन विद इट, तुम जैसी हो वैसी ही रहो, इट आई सेड, others can pick and choose, if you can't, means others are ready who can make physical relationship with Albert, others can pick and choose, ठीक है, लोग तैयार हैं, यहां पे किसी की कमी नहीं, अगर तुम नहीं कर सकती हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर ये कंप्लेंट मत करना कि तुम्हारा पति तुमसे छिन गया, राइट। तो others can pick and choose if you can't, but if Albert makes off, but if Albert makes off, लेकिन अगर Albert makes off means enjoys physical relationship, right, makes off means यहां पे if Albert enjoys physical relationship, it won't be for lack of telling, तो तुम ये मत कहना कि उसने तुम्हें बताया नहीं, ये मत कहना कि उसने तुम्हें बताया नहीं, या मैंने तुम्हें नहीं बताया, उसने तुम्हें नहीं बताया कि तुम्हें क्या करना चाहिए था, अपने पति को सेटिस्फाई करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। तो इट वोंट बी फॉर लैक ऑफ टेलिंग, यू ऑट टू बी असेम्ड। अब देखिए, अब इनका अगला स्टेटमेंट है, यू ऑट टू बी असेम्ड, तुम देखो अपने आप को, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए, जो तुम हालत बना करके रखी हो अपनी, यू ऑट टू बी असेम्ड, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, आई सेड मैंने कहा, टू लुक सो एंटिक, एंटिक मीन्स ओल्ड, कि तुम एकदम से बुढ़िया दिखाई पड़ रही हो, तुम्हें खुद पे शर्म आनी चाहिए, एंड हर ओनली 31, और लिल बेचारी है कितने साल की, लिल है 31 साल की मात्र, 31 साल में उसकी उम्र कैसी हो चुकी है, 31 साल में वो एकदम से बूढ़ी दिखाई पड़ रही है। अब लिल रिप्लाई करती है, नाउ लिल रिप्लाइज, क्या जवाब देती देखिए, आई कांट हेल्प इट मीन्स आई एम हेल्पलेस, मैं मजबूर हूं, ठीक है, आई कांट हेल्प इट, शी सेड, शी मीन्स लिल सेड, लिल ने कहा कि वो क्या है, वो कमजोर है, वो मजबूर है बेचारी एकदम से, पुलिंग अ लॉन्ग फेस, एकदम चेहरा उतार करके उसने कहा, उसका चेहरा एकदम से उतरा हुआ है, पुलिंग अ लॉन्ग फेस, उसने कहा आई कांट हेल्प इट, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें, मेरा कोई वश ही नहीं है, इट इज देम पिल्स, पिल्स मीन्स क्या है, ये अबॉर्शन पिल्स, ये किसकी वजह से हुआ, ये उन अबॉर्शन पिल्स की वजह से हुआ है, आई टुक, जिसे मैंने लिया, टू ब्रिंग इट ऑफ, इट मीन्स क्या है, फेटस, ठीक है, यानी जो भ्रूण है उसको हटाने के लिए मैंने क्या किया, जो मैंने दवाएं ली, ये सब उनकी वजह से है,
सी सेड, उसने कहा, यानी कि आज जो मेरी हालत है ये उसकी वजह से है जो मैंने दवाएं ली। सी हैज हैड 5 ऑलरेडी, यानी कि 5 बच्चे पहले से थे इसके। एंड नियरली डाइड ऑफ यंग जॉर्ज, और पांचवा जो है यंग जो जॉर्ज है वो लगभग क्या हुआ था, मर ही चुका था। मरने का मतलब क्या है कि बार बार अगर आप ऐसी चीजों को कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी और आपका जो बच्चा है, 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस में यही बात कही गई है कि कॉटन जो है वो क्वीन है, किंग नहीं है। किंग जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो डिक्टेटर होंगे, लेकिन क्वीन जो है डिक्टेटर तो होती है लेकिन वो सेल्फ सेल्फ जो है डिस्ट्रॉय करने वाली भी होती, खुद को भी खत्म करने वाली होती है। जिस बंजर जमीन पे अगर आप बार बार कॉटन को उगाएंगे, जमीन पे अगर आप बार बार कॉटन को उगाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो अपनी फर्टिलिटी को क्या करेगा, खत्म कर देगा, खत्म हो जाएगी उसकी उर्वरक क्षमता ही। और यही वहां पे लिल के साथ भी हुआ है, 5 बच्चे पहले से ही उसके। सी हैज हैड 5 ऑलरेडी एंड नियरली डाइड ऑफ यंग जॉर्ज, और छोटा जो जॉर्ज है वो तो लगभग मर ही गया था, वो लगभग मर ही गया था। द केमिस्ट सेड, केमिस्ट आपको पता ही होगा, उसने क्या कहा, इट वुड बी ऑल राइट। अब ये छठे बच्चे की बात हो रही है, 5 बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, अब 6वीं बार ठीक है फिर से प्रेग्नेंट है, और उसको पेट में जो बच्चा है उसको अबॉर्ट करने के लिए उसने केमिस्ट से दवाएं ली, और केमिस्ट ने कहा कि इट वुड बी ऑल राइट, सब सही हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बट आई हैव नेवर बीन द सेम, राइट, बट आई हैव नेवर बीन द सेम, लेकिन मैं पहले जैसी, राइट, अब बिल्कुल नहीं हूं। पहले जैसी यानी कि मेरी जो स्ट्रेंथ थी, यानी मेरी बॉडी की स्ट्रेंथ थी, जो अट्रैक्शन था, वो बिल्कुल उन पिल्स की वजह से क्या हो गया, खत्म हो गया है। अब आप सोचिए, अल्बर्ट ने उसको 6 बार प्रेग्नेंट किया हुआ है। He has impregnated her 6 times and now he expects her to be, have strength, and she must be, all kind of attraction that she had in previous time. So how is this possible? This can never be possible. अब आगे देखिए, अब फिर से ये जो महिला उनको सलाह दे रही हैं वो कह रही हैं, You are a proper fool. तुम तो ना एकदम से बिल्कुल मूर्ख हो। और क्या बताया तुम्हें, यू आर अ प्रॉपर फूल, तुम पूरी तरीके से मूर्ख हो। आई सेड, मैंने कहा, वेल ठीक है, इफ अल्बर्ट वोंट लीव यू अलोन, अगर अल्बर्ट ने तुमको अकेले नहीं छोड़ा, देयर इट इज, आई सेड, तो क्या है, इफ अल्बर्ट वोंट लीव यू अलोन, अगर तुम्हें क्या है कि उसने अगर तुम्हें नहीं छोड़ा, देयर इट इज, तो देयर इट इज का मतलब क्या है, मैरिड लाइफ मीन्स सेक्सुअल रिलेशनशिप, राइट। अगर तुमको अल्बर्ट नहीं छोड़ता है, तुम ये समझ लेना कि क्या है, मैरिड लाइफ का मतलब शादीशुदा जो जिंदगी है उसका मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप ही होता है। आई सेड, मैंने कहा, व्हाट यू गेट मैरिड फॉर, तो तुमने शादी क्यों की है बताओ। What you get married for if you don't want children? बच्चा पैदा करने की मशीन हो गई है क्या वो, मतलब क्या किया है, बस फिजिकल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुई, बच्चा प्रेग्नेंट हुआ, बस उसके बाद हो गया, बार बार एक के बाद एक, ठीक है। क्या है, क्या करेंगे आप सोचिए इस स्टेटमेंट को, एक महिला दूसरी महिला को सलाह दे रही है, What you get married for, तुमने शादी क्यों की, If you don't want children, अरे तो बच्चा पैदा करना है तो क्या करोगे, क्या शादीशुदा जिंदगी का मतलब हमेशा सेक्स करना ही होता है, हाँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। कह रही What you get married for if you don't want children, अगर तुमको बच्चे नहीं हुए, ठीक है, अगर तुम बच्चा नहीं चाहती हो, hurry up please it is time। फिर से आवाज आई बारमेड की, आ चुकी है वो, कह रही है Hurry up, please, it is time। अब देखिए फिर से वही महिला कह रही है, Well, that Sunday Albert was at home, sorry, Albert was home। पिछले संडे तुमको पता है वो क्या है, अल्बर्ट घर पर था। Well, that Sunday Albert was home, अल्बर्ट घर पर था। They had a hot gammon, ये क्या होता है, पिग्स मीट, राइट। गैमॉन क्या होता है, पिग्स मीट, और उन लोगों ने क्या किया था, पिग का मीट बनाया हुआ था। दे हैड अ हॉट गैमॉन, गरम गरम उन्होंने खाया है, बढ़िया। और क्या है,
एंड दे आस्क्ड मी इनटू डिनर, और उन्होंने मुझे इनवाइट भी किया था कहां पर, डिनर पे। यानी ये महिला हैं, ठीक है, वो सब क्या थे, घर पे थे, बढ़िया गरम मीट बनाया हुआ था, और क्या किया था, मैंने जो है मुझको भी वो लोग इनवाइट किए थे टू गेट द ब्यूटी ऑफ इट हॉट, ताकि मैं क्या, टू गेट मतलब टू टेस्ट, द ब्यूटी मीन्स वही जो मीट है, टू टेस्ट द मीट ऑफ इट हॉट। गैमॉन आगे बोलने ही वाली हैं, तभी वो जो मेड है आकर के एकदम से चिल्ला पड़ती है, राइट। द बार मेड क्राइज, द बार मेड क्राइज क्या कह सकते हैं, स्क्रीम कहेंगे। द बार मेड स्क्रीम, चिल्लाती है, हरी अप प्लीज इट इज टाइम, हरी अप प्लीज इट इज टाइम। कितनी बार कहा है आपको, उठिए, बहुत हो गया, समय हो गया। अब ये उठने वाली हैं, उनका जो पूरा स्टेटमेंट था पूरा नहीं हो पाया है। अब ये जो महिला है लिल, ठीक है, वो कह रही है, क्या कह रही है, गुड नाइट बिल। अब ये जो महिला जो सलाह दे रही है उनका नाम बिल हो सकता है, ठीक है। गुड नाइट बिल, गुड नाइट लू, अब लू भी एक वहां पर है। गुड नाइट बिल, गुड नाइट लू, गुड नाइट में 3 लोग हैं, गुड नाइट बिल, गुड नाइट लू, गुड नाइट में, गुड नाइट टाटा, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट लेडीज, गुड नाइट स्वीट लेडीज, गुड नाइट, राइट। एंड दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम शेक्सपियर्स, कहां से ली गई हैं, शेक्सपियर्स हेमलेट, शेक्सपियर्स हेमलेट की लाइन है, और कौन है, ओफिलिया है, ओफिलियाज लास्ट वर्ड्स, ओफिलिया के आखिरी शब्द हैं, ठीक है। और वो इसके बाद सुसाइड कमिट कर लेगी, सुसाइड वोट कमिट करने के लिए जा रही है। वो जो है हेमलेट क्या हुआ, पागल बनने की एक्टिंग किए हुए हैं वो, राइट, वो पागल बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। ओफिलिया वहां पे इनके प्यार में पागल हो चुकी है, इनको लेकर के इनकी कोई जवाबदेही नहीं है, वो बार बार, ठीक है, वो आ रही, लेकिन वो बंदा अपने से टस से मस नहीं हो रहा है। उसके मन में सिर्फ एक चीज बैठ गई है, और वो क्या है, रेवेंज, बदला लेना है बस। तो यहां पर ये लाइंस टी.एस. एलियट ने इसलिए डिपिक्ट की हैं क्योंकि जैसे इन लाइंस के बाद ओफिलिया ने जाकर के क्या किया, सुसाइड कमिट कर लिया। जैसे क्या होता है, ओफिलिया मर जाती है, उसी तरीके से लग रहा है कि लिल भी, क्योंकि अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि वो भी क्या करेगी, सुसाइड कमिट कर लेगी। So you can understand the modern relationship between a male and a female, between a husband and a wife, that married life means only sex. And this is the story of Wastelanders. Modern relationships are so fragile, so weak that any woman like whom, like Bill, like Lou, like May, can break this relationship only through temptation. In all these lines, she is tempting her to commit suicide because she knows that this woman has no strength left in her body and she can't physically satisfy her husband. And if she can't, then there are others, and they may be Bill, they may be Lou, they may be May. All these women, you know, except to these are ready to, you know, to have relationship with Albert, because it doesn't matter to them all that whose husband is Albert. इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल। हम इस मॉडर्न रिलेशनशिप में जी रहे हैं, इस मॉडर्न सिचुएशन में जी रहे हैं। सो हियर यू नो this second section of Eliot's The Wasteland ends on this sad note, where Lil says good night to all ladies that are present there. And these lines, you know, are taken from Shakespeare's Hamlet. Where Ophelia is going to commit suicide after seeing these lines, these words, and this situation proclaims that Lil perhaps also is going to commit suicide because she has no any option left. राइट तो यहीं पर हमारा वेस्टलैंड का सेकंड सेक्शन, जो कि गेम ऑफ चेस है, वो खत्म होता है। अगला हमारा सेक्शन होगा
द फायर सरमन। तो ये वीडियो कैसी लगी आप लोग अपने लाइक और कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।